Good morning, student. Today we start your online classes of subject math, and today we discuss about chapter 11, understanding quadrilaterals. In this chapter there are some definitions related to polygons. Firstly, we discuss about polygons. What are polygons? Polygon, a simple closed curve made up entirely of line segments, is called a polygon. Polygon ऐसे कर्व क्लोज कर्व होते हैं जो एंटायरली पूर्ण रूप से घिरे होते हैं लाइन सेगमेंट से। जैसे कि आपने डिस्कस किया होगा ट्रायंगल, this is a polygon because and closed polygon because all of these sides are line segment and this is a closed curve. Like as quadrilateral, this is also a polygon because it is made by 4 line segments and this is also closed curve. Then we discuss about some type of polygon. First, convex polygon. What are convex polygon? A polygon in which each interior angle. Firstly, we discuss about interior angle and exterior angles. Like as this is polygon. If we extend its any side, then there are two angles we have there. This angle, which is made between one side of polygon and extended side of polygon, this angle is called exterior angle. And inside this polygon, this is interior angle. Then what convex polygon? In which each interior angle is less than 180 is called a convex polygon. If interior angle less than 180, then this is convex polygon. Convex के बाद हम डिस्कस करेंगे concave polygon. Concave polygon, a polygon in which at least one interior angle is greater than 180 is called a concave polygon. कुछ ऐसे polygon होते हैं हमारे पास जिनमें कोई इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा होता है, जैसे ये वाला एंगल। ये एक polygon है because this figure is made 4 line segments, so it is polygon. But this is concave polygon because its one interior angle is greater than 180 degree. Like as look this figure, in this is also a polygon because all of its sides are line segments and one of its angle is greater than 180 degree. This is also a concave polygon. But in this case, these are convex polygons. Next, we discuss about regular polygon and irregular polygon. Regular polygon. Some polygons which have a polygon is called regular polygon if all its sides and angles are equal. Like as square. In square, all of its sides are equal and each angle equals to 90 degree. Then we call a square is a regular polygon. Like as equilateral triangle. Equilateral triangle made up 3 equal sides and each angle of equilateral triangle equals to 60 degree. Then we call equilateral triangle is also a regular
polygon. Next, irregular polygon. A polygon which is not regular is called irregular polygon. अब कुछ polygon ऐसे होते हैं जो regular नहीं होते, उनको हम irregular polygons बोलते हैं. Now we discuss about some facts in polygons. Like as first, angle sum property of a polygon. किसी भी polygon में angle sum property क्या होती है तो वो हम डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले से. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए n साइडेड पॉलीगन्स. मतलब अगर किसी पॉलीगन में n साइड हो तो उसके लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करते हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का सम. तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई पॉलीगन है, एक पेंटागन है, यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 5, क्योंकि इसमें 5 साइड है. ठीक है, तो इसके लिए हम इंटीरियर एंगल का सम जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा. जैसे कि यहाँ पे होता है n माइनस 2, n की जगह 5 नेगेटिव 2 इंटू 180, ये हो गया 3 इंटू 180, 540. तो अगर हम बोले कि पेंटागन में, रेगुलर पेंटागन में इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा तो हम बोलेंगे 540 डिग्री. इस तरीके से हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी वर्क करता है इंटीरियर एंगल के लिए. और जब हम बात करें एक्सटीरियर एंगल के लिए तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे. तो ये सभी पॉलीगन्स के लिए फिक्स होता है जो कि होता है 360 डिग्री. इसके बाद हमारा आता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड वाला, उसको हम डिस्कस कैसे करते हैं n नेगेटिव 2 इंटू 180 अपॉन n. मतलब कि हमारा जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का उनको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ साइड से. ठीक है, इस तरीके से हम जो ईच एंगल होता है वो आ जाता है. जैसे अब पेंटागन में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल्स का सम मिला था 540 डिग्री. और अगर हम यहाँ से केवल वन एंगल को फाइंड करने की कोशिश करें तो हम 540 को डिवाइड कर देंगे बाई 5, n से डिवाइड कर देंगे, n है यहाँ पे 5. ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 into 5 0 5 into 40 108 डिग्री. तो पेंटागन में ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री होता है 108 डिग्री. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द नंबर ऑफ साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन में हमने एक्सटीरियर एंगल्स का सम देखा था, कितना था 360 डिग्री. तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ साइड फाइंड करना चाहे तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल से, यानी कि x से. जहाँ पे x क्या है हमारा, x है हमारा एक्सटीरियर एंगल. x से डिवाइड करते ही हमारे पास आ जाती है नंबर ऑफ साइड्स. नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन. सबसे पहले डिस्कस करेंगे डायगोनल्स होते क्या है. जैसे ये हमारा एक पॉलीगन है ट्रायंगल. ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता क्योंकि हम इसके तीनों वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर चुके होते हैं, तभी इसको क्वाड्रिलेटरल के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट डायगोनल, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराने से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होते हैं उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ही पेंटागन में भी ऑपोजिट वर्टेक्स को जितने भी टाइम हम ज्वाइन करा सकते हैं वही उसके डायगोनल होते हैं. 5 टाइम हमने इसको ज्वाइन कराया तो इसमें 5 डायगोनल्स ड्रॉ हो गए. इनको हम फाइंड करते हैं एक सिंपल मेथड से, जो कि हमारा फॉर्मूला यूज होता है n इंटू n माइनस 3/2. n नंबर ऑफ साइड्स होती है. ठीक है, जैसे पेंटागन के रेस्पेक्ट में n की जगह अगर 5 रखें तो ये 5 माइनस 3/2. तो ये हो जाता है 5 इंटू 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 5. इसका मतलब पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे 5. इस तरीके से हम कुछ फॉर्मूलाज की मदद से हम वेजेस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं.
ये सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है और इसी के साथ में आपको होमवर्क में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अपनी रिवीजन कॉपी में सोल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे हम उनको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।